Thank you, Prahlad Joshi ji. Thank you very much. And namaste and Jai Hind to everybody. Now, he doesn't often come to events. And when he comes, we would not let him go. We'd ask him some questions because his ministry, like somebody was just telling me, are, कहते हैं ना घर में चिराग चलाने का काम करती है, एक राशन और दूसरा रोशनी. So that's why it's very critical. Prahlad ji, my first question, this is a white swan day, as many people say, 22nd of September 2025 with GST 2.0. Why do you believe this is landmark? So I would like to understand your perspective, from your perspective, why is it that this day is very important, especially from the consumer's point of view and from a nation point of view? Thank you, Anand. But first of all, I'm thankful that the first day when the GST 2.0 or 2.0, you are telling it according to me, it is and the Prime Minister, it is next gen GST. And also, as far as a political science student, I can say this is the biggest ever reform after 77 years of independence, according to me. With full confidence at my command, I am telling you, this is the biggest reform. And why it is important? Why it is important means whatever the, as far as Consumer Affairs Minister, if I can tell you, whatever the consumers day to day they are using, that is either 0% or 5%. So if I can quote, I come from the South India, if I can quote an example, if I go to, whenever I visit Bangalore, I go to one hotel there, where dosa is done very well. तो वो डोसा के लिए हमको 20% टैक्स देना पड़ता था फॉर ओन डोसा. टुडे इट इज 0. ये बहुत सामान्य होटल है. उसमें तो जब वो रसीद देते थे हमको 20% मीन 100 रुपए डोसा है तो इसके लिए 20 रुपए हमको टैक्स देना पड़ता था. आज तो 0 है. अच्छे साउथ इंडियन कॉफी पीते हैं तो 20% जीएसटी था, 20% टैक्स था, ऑल पुट टुगेदर बिफोर टू जीएसटी एंड बिफोर टू दिस रिफॉर्म. टुडे इट इज 0%. And many of them, they are under 5%. So toothpaste and shampoo, soap, all those, they are in 5% range. Means common man is going to be benefited. And of course, either state government or central government, we are losing some revenue. Some states, especially opposition states, वो तो अभी रो रहे हैं, लेकिन रोना ही उनका काम है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं. लेकिन क्वेश्चन क्या है, जब जनता को इतने बड़ी मात्रा में सेविंग्स होता है, जन परचेजिंग पावर, उनका जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी बढ़ता है. जब मार्केट में बिजनेस ज्यादा होता है, जब बिजनेस ज्यादा होता है नेचुरली रेवेन्यू भी ज्यादा होता है. लेकिन उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना है और पहले जनता को सुविधा देना चाहिए. ये तो मन से काम करना है. दैट इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज डन इट. ये नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स आपने कहा, पर प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि नागरिक देवो भव. अब आपका दूसरा एग्जाम्पल ही ले लेते हैं. वो जो 20 रुपया कम हुआ है वो बेनिफिट पास ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि या उसमें थोड़ा आपको समय लगेगा? क्योंकि आज पहले दिन कई जगह से फीडबैक आया सर कि नहीं हो रहा है. एक तो प्रधानमंत्री जी का एक विशेष गुण है, ही हैज गॉट अ स्पेशल क्वालिटी, दैट इज he believes in the citizens of country, he believes the people of the country, he believes the businessmen of this country, and we are trying to promote it, we are going to canvass it. But at the same time, वो भी बहुत ज्यादा कंपनियां आप देखे होंगे, तो कार वाले हो, छोटे छोटे, हमारा एक कर्नाटका मिल्क फेडरेशन है कर्नाटक के, वो सरकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है. इट इज द इलेक्टेड बॉडी. They immediately they have given the advertisement how much they are reducing. Like many companies, they have already given. So even Hindustan Lever, yeah, Unilever, they have also given the advertisement. That is one aspect of it. Second is GST में भी एक एंटी प्रॉफिटिंग एक विंग है. और एज ए कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री we have established a helpline because generally consumer का complaint, though there are other authorities, like for example civil aviation में भी DGCA है, फिर भी कुछ हमारे पास आता है कंप्लेंट. क्योंकि कंज्यूमर एज सच मेनी अ टाइम दे फील दैट वी शुड गो टू द कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री.
So we have also made up a system that pre-litigation में ही हम तो कुछ हल करने का कोशिश करने के लिए हमने ऑलरेडी किया है. So for that purpose, they are coming to us and we have established a helpline. We are also monitoring. And as a prime ministry, line ministry, the finance ministry is also doing necessary follow-up and we see to it that it is passed on to the consumers. तो जैसे आपने मदद किया था प्रयागराज के टाइम, कुंभ के टाइम एयर प्राइसेस को कंट्रोल करने में आपने मदद की थी, डिफरेंशियल प्राइसिंग थी प्लेटफॉर्म्स पर, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर, उस पर भी आपने कुछ मदद की थी. तो यहाँ जीएसटी में भी डिस्पाइट नॉट बीइंग द लाइन मिनिस्ट्री आप हेल्प करेंगे? ना, लाइन मिनिस्ट्री तो वो है, लेकिन मैंने कहा ना, कंज्यूमरीज हमारा मंत्रालय का बेसिक काम है to take the interest and take the care of the consumers. Definitely we are going to do that. That's why we have established a helpline. But Mantri ji, why do you call it the biggest reform? You said, I put my word here. This is the biggest ever reform that Bharat has witnessed. Why do you say that? Now, why I have said is probably everybody is so far, because now it has been announced 15 days back, everybody is aware. See, what used to happen, so many taxes, so many compliances. अभी compliances भी इतना simple हो गया, रिफंड इतना सिंपल हो गया, और स्लैब ओनली 2 स्लैब. तो ये सब देखते हुए लोगों को, एक तो बिजनेस कम्युनिटी को भी लग रहा है कि ये कंप्लायंसेस भी इजी है, रिफंड भी अगर कुछ है तो रिफंड भी तुरंत आता है, रिफंड के लिए भी इसमें प्रोविजन है, और टैक्स स्लैब भी कम हो गया है. पहले तो जब आई कैन रिकलेक्ट, आई हैव इंडस्ट्री इवन टुडे, I am one of the director in that. I am a shareholder. छोटा कंपनी है, ठीक है, लेकिन मैं हूं. When I started the company, you cannot believe, because I come from a very humble background. वो एक एक्साइज इंस्पेक्टर करके इतना हमको तंग किया था, तो हमको पहले शुरुआत में ऐसे लगा क्यों हमने ये फैक्ट्री शुरू कर रहे, ऐसे लग गया था. लेकिन आज तो सिस्टम इतना सिंपल हो गया है, और एक ही जीएसटी में 2 ही स्लैब में पूरा आपका समस्या हल हो जाएगा, और आपका जो इनपुट क्रेडिट है वो सब तुरंत रिफंड आ जाएगा, और इसके साथ ही साथ आपका जो डेली कंज्यूमेबल आइटम्स है दैट हैव बिकम इधर 0% और 5%. इससे राहत क्या चाहिए? पीपल आर वेरी हैप्पी अबाउट इट. दैट्स वाई ये सब लोग क्यों रो रहे हैं, इतना दुख इनको क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मोदी जी एक कभी कभी बीच में सिक्सर मार देते हैं, इनको तो वो तो समझने के लिए कुछ समय लगता है. दैट इज देयर प्रॉब्लम. But people are very happy about it, and we don't want to make politics out of it. But I can tell you, this is the biggest relief for the public. विपक्ष, स्पेशली द कांग्रेस, इज सेइंग हमने तो 8 साल पहले कहा था, अब आज कर रहे हैं, जो हमने तब कहा था अब आज कर रहे हैं. एक तो आज मैंने एक स्टेटमेंट देखा, शायद आप भी देखे होंगे. ये तो दिखावा है, ये तो बकवास है, आई वॉश. हाँ जी, हाँ, आई वॉश है. तो एक तरफ बोलते हैं आई वॉश है, दूसरी तरफ बोलते हैं हमने आइडिया दिया था. तो कम से कम पूरा क्लियर होके आ जाओ, क्या कहना चाहते हो. यू कम आउट विथ व्हाट यू वांट टू से अबाउट दिस ओवरऑल रिफॉर्म. पहले तो कहा हम ही बोला था, तो यही लोग चाहते थे ना. आई वॉज देयर एज ए अपोजिशन एमपी ऑल्सो इन पार्लियामेंट. तो जीएसटी का जब ये लोग लाए थे, क्यों अपोज किया था? इनका जो उस टाइम के यूपीए था, आज का इंडिया है, वही पार्टी के लोग अपोज किया था. व्हाट वाज द रीजन? क्योंकि उस टाइम सेंट्रल सेल टैक्स का एक इशू था, उसमें कॉम्पेंसेशन देना था, तो उसमें जो भी रिफंड करना था स्टेट को देना था, ये लोग नहीं दिया था. इसलिए यही एनडीए, यही यूपीए का लोग कहा आपके ऊपर हमको विश्वास नहीं है, हम जीएसटी नहीं चाहते हैं. लेकिन हमने जो जीएसटी के कॉम्पेंसेशन पर वादा किया था, वो कॉम्पेंसेट करने के लिए हमने कानून में भी प्रावधान किया, और मोदी जी उसका पूरा पालन किया. इसलिए जीएसटी काउंसिल में अभी यूनानिमसली एक्सेप्ट होने के लिए कुछ लोग मन से करते हैं, लेकिन कुछ लोग तो जनता के डर से करते हैं. दिस इज द डिफरेंस व्हाट आई कैन सी टुडे. ममता दीदी हैज ऑल्सो सेड दैट हेल्थ इंश्योरेंस पर हमने बोला था, इसीलिए हुआ है. ये कोई सरकार ने नहीं किया, हमारा आइडिया था. नहीं, आप तो पूरा तो मन से स्वागत करो ना. आपका आइडिया है तो कम से कम मन से स्वागत तो करो ना. वो भी नहीं कर रहे हैं ना. Why you are afraid of welcoming it? But did you know that this is going to happen, or
Was there an indication that this is going to happen in 15 days? Suddenly this announcement comes. And do you wonder कि मोदी जी ऐसे risk क्यों लेते हैं? Does he have this appetite? Politically बड़ा risky काम है. देखिए, ये तो होने वाला है। ये तो वो क्या था, सरकार में क्या चर्चा चल रहा था पहले, ये तो मैं पब्लिक में अभी नहीं बोलता हूं। लेकिन मैं एक चीज तो कहता हूं, ये तो एक सप्ताह में, 15 दिन में, एक महीने में ये डिसीजन नहीं हो सकता है। वी शुड एग्री दैट देयर शुड बी लॉट ऑफ कंसल्टेशन। तो इसमें बहुत ज्यादा लोगों से, हमको स्टेक होल्डर से भी कई बार चर्चा करना पड़ता है और इसके लिए तैयारी करना पड़ता है। वो तो बहुत दिनों से चल रहा था और प्राइम मिनिस्टर के मन में ये था कि हमने जीएसटी तो शुरू किया है, ये जीएसटी का बहुत अच्छे लाभ तो हुआ है जो 17 में हमने शुरू किया, लेकिन उसका जो स्लैब कम करना, कॉम्प्लायंसेस कम करना, ये सब चीजें जो है, दीज हैज टू बी रियली, इसका बेनिफिट जो है लोगों के लिए ये तो पहुंचाना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो डे टू डे यूज करने के लिए जो कंज्यूमेबल आइटम्स है, उसमें तो इधर 0 और 5% का करना है, मोदी जी के मन में पहले से ही था, एंड दैट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड नाउ। What according to you in the last 11-12 years are the top 5 reforms by Prime Minister Modi? One is, according to me, GST itself is the biggest reform. Second one is insolvency and bankruptcy. इसके कारण क्या हुआ है, बैंक में और ए असेट वगैरह के जो भी प्रॉब्लम चलता था पहले से, वो लगभग बहुत ही कंट्रोल में है। नहीं तो इवन अदरवाइज बैंकिंग रिफॉर्म्स जो है, इन कंटिन्यूएशन विद द बैंकिंग रिफॉर्म, तो ऑल बैंक्स, उस टाइम जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट था इतना बहुत ज्यादा था, आज तो ऑल बैंक्स दे आर इन प्रॉफिट and NPA has come down like anything. That is the second reform. And third is ease of doing business and the infrastructure. ये बहुत बड़ा एक बदलाव है। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, तो मैं जानता हूं जी, हमारा एयरपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी का एयरपोर्ट, ये तो एक एयर स्ट्रिप था, तो मोदी जी आने के बाद एयरपोर्ट फुल प्लेज्ड एयरपोर्ट हो गया और अभी 8-10 फ्लाइट ऑपरेट हो रहा है। और ऐसे 70 to 150 एयरपोर्ट्स, रोड में कितना बदलाव आया है, पोर्ट में कितना बदलाव आया है। और आज के दिन में मोदी जी बार बार हमको कहते हैं कॉम्प्लायंसेस कम करो और जो लॉजिस्टिक टाइम है वो टाइम कम करना। दिस इज दी अनदर बिगेस्ट रिफॉर्म। जनधन इज अनदर बिगेस्ट रिफॉर्म। जब प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने बोला था कि आप अकाउंट ओपन करो, यही लोग मजाक उड़ाया था। पहले अकाउंट ओपन किया, बाद में आधार को लिंक किया, बाद में मोबाइल को लिंक किया। कितना बड़ा बदलाव आया जी। लगभग 4 लाख करोड़ सेविंग्स हो गया। जो हम डायरेक्टली डीबीटी करते हैं उसके कारण 4 लाख करोड़ का जो सेविंग्स हुआ, ये गरीब का कैसा बीच में कौन खाते थे, किसके जेब में जाते थे। ये तो सब जो बदलाव है, ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है, एंड दीज रिफॉर्म्स आर बेनिफिटिंग द पीपल ऑफ द कंट्री। Let's talk about renewables, solar and wind. There's a huge thrust. That's also because the climate goals, we as a nation have to achieve a few climate goals. What kind of reforms are being pushed in the renewable energy sector, especially solar and wind? एज इट इज, जो सोलर का और विंड का ओवरऑल रिन्यूएबल का है, इफ आई कैन पुट इट इन ए ओवरऑल, जो इस 10-11 साल में हुआ है, इफ आई कैन कोट अबाउट दैट, व्हाट वाज द टोटल सोलर एनर्जी इन द कंट्री बाय व्हेन इट वाज 2014, as far as I remember, and it is correct also, 2.4 gigawatt. Today it is nearly about 125 gigawatt. Another week, 15 days, it is going to reach 130 gigawatt. So from 2.4 to 130. And 75 gigawatt of the total from the non-fossil fuel source,
Today, it is 252. 50% of our target of 2030 is being achieved. And installed capacity, जो प्रधानमंत्री पंचामृत के द्वारा COP26 में अनाउंस किया था, by 2030 we are going to install 50% of our energy from the non-fossil sources. It is achieved 5 years in advance, that is 2025 we have done it. And EU का एक delegation आया था, पूरा आप देखे होंगे, पूरा कमिश्नर सब, all the commissioner सब आए थे. And Prime Minister told me to give a presentation to them. जब मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया हमारा ऑफिस में, आई हैड इन्वाइटेड देम टू माय ऑफिस, दे वर स्टन्ड. 10 वर्ष में हो सकता है क्या? लेकिन तो बाकी तो मैं तो ऐसे क्या क्या हुआ है मैं आपको और डिटेल में बता सकता हूं, लेकिन ये तो फ्रॉम 2.4 to 130 इट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट. सेकेंड थिंग इज मॉड्यूल. देश में स्वदेशी मॉड्यूल होता था क्या जी? अभी तो मॉड्यूल हो गया है. हाउ मच वी हैव इन्वेस्टेड इन दैट? 24,000 crores. ये मोदी जी के अलावा और कोई रिस्क ले ही नहीं सकते जी. वी मेक इट विथ वायबिलिटी गैप फंडिंग. हमने पीएलआई में उनको दिया और उसके साथ अभी सेल का 25 गीगावाट 28 गीगावाट का हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है और हमने एएलएमएम लागू किया है. 28 तक इसका शुरू हो जाएगा. और स्वदेशी इनगॉट और स्वदेशी वेफर, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. ट्रेजेक्टरी इज ऑन एंड आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट वी विल कम आउट विथ फॉर दैट ऑल्सो विथ वायबिलिटी गैप फंडिंग. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, वेर एवर द वायबिलिटी गैप फंडिंग दैट इज in the form of PLI we have brought, that has brought down the per unit cost and overall investment by cost of the unit has come down by 40%. This is the biggest achievement, and by that the cost of the electricity per unit when it comes down, overall हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है ना, वो प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता है. So that is the biggest thing what has been done. I am very happy about it. And it is not only another thing, I am taking your little time. It is not just that only renewable energy emission or clean energy, ये तो ठीक है. But I have handled coal also. Yes. By handling the coal, I know little about thermal power. Thermal power का, though we have good amount of coal, but overall problem is 6.5 rupees minimum आता है per unit. But whereas with storage capacity, with wind, with pump storage, all put together in a hybrid model, we are giving at 4.5 per unit. So then what will be the difference? 2 rupees. 2 rupees difference is a big thing as far as manufacturing is concerned, because one of the major raw material in any manufacturing activities is the power. So this is adding to our overall reduction in the cost, and we are becoming viable in the global market. This is the biggest thing what we have done under the leadership of Prime Minister Shri Modi. But you say the renewable energy, we've met the targets 50% 5 years in advance. But last year, 2/3 of our generation was via fossil fuel power generation. So ये paradox थोड़ा समझाइए. ना, पैराडॉक्स जो समझाने के लिए मैं इतना ही कहता हूं, तो हमको रिन्यूएबल ऐड करना है. तो ऐसे तो हमारा बहुत ज्यादा ऐड हुआ है. आई एम नॉट कंपेयरिंग इट, बट एट द सेम टाइम तो थर्मल तो बहुत वर्षों से चल रहा है और हमको डे बाय डे, आज टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन द कंट्री इज 495. Out of that, 252 is the renewable energy. So we are adding minimum. Last time our addition was 33 gigawatt. Correct. This time I think it is going to be 44 or 45 gigawatt this year, current year what I am speaking. So day by day renewable energy is increasing. But पहले जो जीरो था, 10 बरस में इस लेवल तक तो आए हैं ना, तो जीरो से अभी इधर तक पहुंचे हैं. मुझे विश्वास है और 10-15 वर्ष मोदी साहब रहेगा और हम तो वी विल सरपास वॉट एवर इट इज देयर इन दी
फॉसिल फ्यूल से जो आता है उसको हम सरपास करेंगे. Well, let's hope that. But for that, कुछ projects जो अटके हैं उसको भी clear करना जरूरी है मंत्री जी. I'm given to understand that approximately 40 gigawatt of such RE capacity is lying unused due to lack of PPAs. So what is the government going to do? Because DISCOMs are not coming forward to sign power purchase agreements. So what are you going to do there? With the other problem, there is one major problem. That is, one is ये जो प्राइस डाउन हो रहा है, तो हर स्टेट गवर्नमेंट सोचते हैं कल और कम होगा. दिस इज द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग. तो मैंने सब चीफ मिनिस्टर्स को भी कहा हूं, और मेरा सेक्रेटरी रेगुलरली ही इज इंटरेक्टिंग विद द चीफ सेक्रेटरीज एंड द एनर्जी सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट, एंड आई हैव मेट मेनी ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स दैट अगर आप पीपीए नहीं करते हैं तो कम होता है. तो अभी जो करके अगर आप पावर जनरेशन कैपेसिटी बढ़ाते हैं तो नेचुरली आपके प्रदेश में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, रेवेन्यू आपका बढ़ेगा, जॉब क्रिएशन आपके स्टेट में ज्यादा होगा. तो ये हम कन्विंस कर रहे हैं. रिलेटिवली उसमें तो थोड़ा कुछ प्रगति हुआ है, एंड फर्दर इसमें प्रगति होगा, क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज आल्सो टेकन इट वेरी सीरियसली. अनदर स्मॉल प्रॉब्लम इसमें है, रेगुलेटर लोग बहुत स्टेट में हो सेंट्रल में हो थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हर्डल क्रिएट करते हैं. दैट ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू हैंडल इट. The center-state coordination is something which is also an impediment. You touched upon it. Is that too much of an impediment? Are state governments putting too many roadblocks? Is the center not working with the states? देखिए, कई समझने में कुछ लोगों को लेट होता है. पहले जैसे आप अगर इफ यू कैन रिकलेक्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी has started this movement of renewable energy, especially solar, around 22 years back. Then the cost was around 17-18 rupees per unit. Yeah. But Modi ji did not stop, because he knew that after 20 years or 2 decades or so, the energy future is the renewable. So अभी लोग समझ रहे हैं. For example, if I can quote, PM Kusum is for the agricultural. Correct. तो ये एग्रीकल्चरल में कोई भी आगे नहीं आ रहे थे, लेकिन हमने तो सबसे बातचीत करके उनको कन्विंस किया हाउ इट इज गोइंग टू बेनिफिट नॉट ओनली फार्मर्स टू इवन टू द स्टेट एक्सचेकर. तो मैंने कई लोगों को हमारे ऑफिसर से एक प्रेजेंटेशन करवाया कि एक बार आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप जो अभी फ्री पावर देते हैं, एक ही बार आपका इन्वेस्टमेंट होता है, बाद में आप हर महीने हर बरस आप जो डिस्कॉम को पैसा देना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट से, वो बंद हो जाता है. यूर फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हेडेक है, वेदर इट इज फॉर द हाउस होल्ड और वेदर इट इज फॉर द एग्रीकल्चरल, दैट विल वंस फॉर ऑल स्टॉप. ये तो कन्विंस हो गया, काम भी शुरू हो गया. इस बीच में मैं अभिनंदन करना चाहता हूं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को. महाराष्ट्र मुख्यमंत्री ने एक पीएम कुसुम का एक अच्छा मॉडल लाया, तो तब सबको लगा ये तो इसमें बहुत जादू कर सकते हैं. अभी तो हर मुख्यमंत्री आके मुझे मिलते हैं, हमको पीएम कुसुम अलॉटमेंट ज्यादा करो. तो मार्च में ये पीएम कुसुम अभी स्कीम पूरा हो रहा है, इट इज गोइंग टू एंड. बट नाउ आई हैव रिक्वेस्टेड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, पीएम कुसुम 2.0 का आगे बढ़ाने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है. बहुत मुख्यमंत्री भी अभी पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को, काइंडली इसको एक्सटेंड करो. सो दैट नाउ तो कई लोग जल्दी समझते हैं लाइक प्रधानमंत्री मोदी जी, और कुछ लोग जल्दी नहीं समझते हैं. तो अभी समझने का थोड़ा उनके लेवल पर समझते हैं, लेकिन अभी बाय एंड लार्ज इंक्लूडिंग अपोजिशन स्टेट दे हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. वन इज प्राइस, अनदर वन इज द बेसिकली दिस एमिशन, ऑल सच थिंग्स. एंड डिसेंट्रलाइज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है ना, कितना जॉब क्रिएट कर रहे हैं. 12 लाख 13 लाख ऑलरेडी हो गया है पीएम कुसुम, पीएम सूर्यघर में. सो पीपल आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन देयर विलेज, पीपल आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन देयर स्मॉल सिटीज, Tier 2 cities. So everybody is understanding the importance of this renewable energy, and by that this movement has picked up very well, and Prime Minister, because of his leadership, he has convinced many people.